Hello students, we are discussing lesson number 8 of science, that is water scarcity and conservation of water. Until now we have discussed that most of the water which is present on this earth is exist in oceans and seas, and that is a salty water and we can't use it for our daily needs, and small part of water is fresh water and that we can use for our daily needs, and this water is also decreasing due to various factors, and we have discussed the factors uh, causing the shortage of water. So that are population. That means the population is keeps on increasing, whereas the sources of water are not increasing. And then the deforestation, that how deforestation causes the shortage of water. Deforestation means cutting down of trees, and when the trees are decreasing, then the amount of rainfall is also decreasing. So and the third reason is setting up of factories. How the factories, big factories needs lot of water and they fulfill their needs by using underground water, and that causes the shortage of or decrease the level of underground water. And then we started the need for conserving water. That what is the need of conserving water? Water को बचाने की, सेव करने की क्या जरूरत है? So we have discussed that if we keep on wasting this water or waste our water resources carelessly, then a time will come when there will be not be enough water for all of us, and the crop can also die due to lack of irrigation. So we should therefore make sincere efforts to save water so that it remains available for the future also. So now today we will discuss what is called water conservation. We can save water by avoiding its over usage. तो हमें over usage means जो जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम यूज करते हैं, दैट इज ओवर यूसेज. तो हमें सबसे पहले सेव करने के लिए क्या है, ओवर यूसेज को अवॉइड करना पड़ेगा. जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वाटर हमें यूज करना चाहिए. एंड सेकेंड, वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर. सो प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजिंग. सो दिस इज प्रॉपर and careful utilization of water, avoiding its wastage, and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation. So proper and careful utilization, कि सही तरीके से और हम यूटिलाइज करें वाटर को, उसमें को वेस्ट ना होने दें, और जो वाटर के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उसमें वाटर के अमाउंट को मेंटेन करें. दैट मीन्स उसको कम ना होने दें, उसको प्रॉपरली केयर करें. दैट इज कॉल्ड द वाटर कंजर्वेशन. मीन्स वाटर को कैसे हम मीन्स बचाने, तो हम बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस यू मस्ट लर्न. एंड नाउ वी विल डिस्कस द वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, कि किस तरह से हम वाटर को कंजर्व करने के में हेल्प कर सकते हैं. सो वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स. तो हम डेली लाइफ में बहुत सारा वाटर को सेव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन पॉइंट्स वन बाय वन. सो हमें ये जो हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हमें अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, turn off the tap after using it. So sometimes what happen, we use the tap and we जो हम क्या करते हैं उसको बंद नहीं करते. We does not turn off the tap after using it. वो पानी क्या होता है, बहता रहता है, या प्रॉपरली उसको ऑफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, उसमें से वाटर जो है वो टपकता रहेगा या धीरे धीरे बहता रहेगा. सो दैट इज द वेस्टेज ऑफ वाटर. सो वेन एवर यू यूज द टैप, जब भी हम यूज करते हैं फॉर एनी रीजन, हम वाटर जब भी यूज करते हैं, वी मस्ट
टर्न इट ऑफ, हमें उसको बंद करना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट बिल्कुल भी वाटर वेस्ट ना हो. Secondly, do not keep the tap running while brushing teeth or washing hands. So sometimes you must have observed that what some people do, वो ब्रश करते हैं और ब्रश करते करते साथ में टैप जो है वो रन होता रहता है, बहता रहता है जब तक वो ब्रश करते हैं. सो ब्रशिंग टेक्स 5 to 7 minutes, कम से कम 3 4 5 minutes कम से कम करता है कोई भी ब्रश जो करता है. तो उतनी देर तक अगर टैप चलता रहेगा अननेसेसरीली, सो यू कैन थिंक इमेजिन दैट हाउ मच वाटर गेट वेस्ट. सो आपने जब भी ब्रश करना है, औरों को भी बोलना है कि ब्रश करते हुए जो टैप है वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए. जब रिक्वायरमेंट होती है देन वी शुड ऑन द टैप, हमें तभी ओपन करना चाहिए टैप को जब हमें रिक्वायरमेंट है. आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, जब रिक्वायरमेंट है तभी हमें ओपन करना चाहिए, उससे पहले हमें ऑफ कर देना चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हैं. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द टैप इज नॉट रनिंग एंड अ बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ. सो दिस इज प्रॉपर वे, हमें टैप का बड़ा ध्यान रखना है. और कई आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब वॉश करते हैं हैंड्स तब भी टैप चलता रहता है और वो अपने जो हैंड्स को सोप लगा के क्लीन करते रहते हैं, बट टैप भी साथ के साथ चलता रहता है. सो दैट शुड ऑल्सो नॉट डन. जितनी देर आप हाथ को मल रहे हैं सोप से तब तक आपको टैप ऑफ करना चाहिए. जब आपने उसको वॉश करना है देन ओनली यू टर्न इट ऑन. Next is use a mug and bucket to take bath instead of shower. So most of us like to bath with shower. Shower से बात करना हमें पसंद होता है, but instead of shower we should use a mug and bucket. जब हम mug and bucket से नहाते हैं तो water कम use होता है, and जब shower हम use करते हैं so water get waste. उसमें ज़्यादा वाटर यूज़ होता है शावर में, हमें पता नहीं चलता बट ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं हम शावर में. लेकिन जब हमारे पास मग एंड बकेट से हम बात करेंगे तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर विल बी यूज्ड. नेक्स्ट इज वाटर द प्लांट्स विद अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ अ पाइप. सो यू नो, जब हम पाइप यूज़ करते हैं प्लांट्स को वाटर देने के लिए, सो ज़्यादा वाटर हमारा वेस्ट होता है, नीचे गिरता है, इधर उधर गिरता है और बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर द गर्ल इज गिविंग द वाटर टू द प्लांट्स थ्रू मग. सो शी यूज दिस मग टू वाटर द प्लांट. सो अगर हम बकेट एंड मग यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हम जितना रिक्वायरमेंट होंगे उतना ही वाटर पॉट में डालेंगे और हमारा वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, बाहर नहीं गिरेगा, पॉट में ही जाएगा जितना वाटर रिक्वायर्ड है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, टेक ओनली दैट मच वाटर इन अ टम्बलर दैट यू कैन ड्रिंक. डू नॉट थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर इन द सिंक, पोर इट ओवर प्लांट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना है कि जितना वाटर आपने पीना है उतना ही आपको टम्बलर में या ग्लास में लेना है. अगर आप पूरा फिल कर लेंगे टम्बलर को और पीना आपने 2 सिप है तो बाकी वाटर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. और आप क्या करते हैं, उसको जनरली सिंक में फेंक देते हैं, राइट. उसको जब वॉश करते हैं हम ग्लास को तो वो जितना भी वाटर उसमें बचा हुआ है वो फेंक देते हैं सिंक में. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेस्टेज ऑफ वाटर. सो अगर आपने ज़्यादा वाटर ले लिया है और वो आपसे नहीं पिया जा रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, वैसे तो लेना ही नहीं है इतना ज़्यादा वाटर, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए. अगर आपने ले ही लिया है सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पोर दैट वाटर ओवर द प्लांट्स. आप उस वाटर को जो भी नियर बाय प्लांट है आपके घर में, पॉट है या कुछ भी है, तो उसमें आप डाल सकते हैं, सो दैट स्पेशली हमको बाद में उसको वाटर ना देना पड़े. सो in this way you can utilize that leftover water.
And do not throw away water used for washing vegetables, rice and pulses. Use it for watering plants. Again, जब हम वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, आपकी मम्मा जब किचन में वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, राइस पल्सेस वॉश करते हैं, सो वो वाटर जनरली थ्रो कर देते हैं. बट वी कैन यूटिलाइज दैट वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. उस वाटर को भी हम अगर प्लांट्स में डालते हैं, सो इट कैन सेव लॉट ऑफ वाटर. And get the leaking pipes and taps repaired immediately. You can see here in the picture, a plumber is repairing the tap. So it is very important. You must have seen a lot of time the pipes got leak or tap gets leak. So जो टैप्स हैं उसमें से वाटर बहता रहता है, उससे बहुत सारा जो वाटर है वो वेस्ट होता है, अननेसेसरी वो चलता रहता है, और उससे बहुत इस तरह से बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट होता है हमारा. सो जब भी कोई लीकिंग पाइप्स या टैप्स दिखता है तो उसको रिपेयर कर देना चाहिए इमीडिएटली, उसी टाइम, सो दैट वाटर जो है वो सेव हो जाए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली बहुत सारे टैप्स हो जो लीक करते रहते हैं. सो वी शुड रिपेयर दोज टैप्स एंड पाइप्स. So these are the points which we should keep it in mind to save the water. So read these points again and adopt in your daily life. In next video we will discuss how can we conserve the water on large scale. Today we have discussed that how we can save the water in our daily life, but in next video we will discuss how we can conserve water on a large scale, right? Thank you.